Hello friends, today we will see single entity system. Under the single entity system, we see practical problem. But before we discuss some important concept of that chapter, single entity system. Into the system we see the two methods are into the system. Calculation of single entity, net worth method and conversion system method. It is another word called converted into the double entry bookkeeping system. उसे कहते हैं conversion systems. और conversion system is not included in your syllabus 11th. 11th के syllabus में आपको ये system नहीं है. This is our chapter number 10, single entry system. Question number 4 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. Is going to 8 marks. 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम के अंदर. What is capital? Into the single entity system, we calculate the amount of capital. What is capital? Capital means excess of assets over liabilities is called capital. Excess of assets over liabilities, it is called capital. So capital is equal to जो फॉर्मूला आपका है, capital is equal to assets माइनस लाइबिलिटीज. ये इक्वेशन है आपका, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस एलएपी, लाइबिलिटीज. दैट इज फॉर्मूला आपका है. मीनिंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. Liabilities, assets minus liabilities is called capital. That is the formula of capital. We calculate the capital amount, use this formula. Capital is equal to assets plus liabilities. So capital means excess of assets over liabilities. Excess of assets over liabilities is called capital. It's called capital of the business. The following accounts are open into single entity system. Single entity system में दो accounts open किए थे, statement of affairs and statement of profit and loss. Into this practical problem of single entity system, the following two methods of ascertain the profit of business. बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं. पहले नेट वर्थ मेथड जो आपको सिलेबस के अंदर दी हुई, और सेकंड है आपकी कन्वर्जन मेथड उसे कहते हैं, या कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम मेथड. इस सेकंड मेथड, दिस मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन 11th सिलेबस, हेंस इट इज नॉट एक्सप्लेन हियर. इसलिए यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करना है. ओनली वी एक्सप्लेन द नेटवर्क मेथड. नेटवर्क मेथड से आपको प्रॉब्लम आता है और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू द सिंगल एंट्री सिस्टम. Most important, how to calculate opening capital balance and closing capital balance as comparison to assets and liabilities. इसलिए what is capital? Capital की डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बताया कि excess of assets over liabilities. फॉर्मूले में capital is equal to assets minus liabilities is called capital. वो आपका capital आप सकता है. तो प्रॉब्लम में आपको assets और liabilities दी जाती है. You know the assets, you know the liabilities. Assets कौन से हैं, liabilities कौन से हैं, आपको इसके पहले टॉपिक में आपने देखे हुए. Assets, land, building, plant, machinery, cash, all assets. Those we are movable and unmovable assets. Visualized and unvisualized assets we have seen into these types of assets. Fixed assets, current assets, and fictitious assets. And capital is our liabilities. उसमें general reserve, bills payable, creditors, loans from financial institute, contingent liabilities. These liabilities called as liabilities of the business. The business की liabilities होती है. Capital भी also liabilities. So into this topic we calculate the amount of capital. How to calculate opening capital balance and closing capital balance in given above information. जो information आपको दी जाती है क्वेश्चंस के अंदर, उस दिए हुए क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड देन वी आर कैलकुलेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो इनटू दिस सिंगल एंट्री सिस्टम, the following two methods
ascertain the profit of business. So capital कंपैरिजन मेथड से कहा जाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड में दो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक नेटवर्क मेथड एंड कन्वर्जन, उसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मेथड. कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री, conversion of single entry to double entry, it is called conversion system method. This system is not included in L1 syllabus, इसलिए hence it is not explained here. We see the network method. Network method क्या होती है? We calculate now. So single entry system is used by sole trader. ये जो network method है, ये network method जो यूज करते हैं, नेटवर्क मेथड यूज बाय सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर उसे यूज करते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म अदर एसोसिएशन, जो आपके अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर यूज their records into network method. They maintain their records into this single entry system. We see the network method and calculate the amount of capital. कैपिटल का अमाउंट आपको कैपिटल करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, इसमें दो कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. ये दो कैपिटल वी कैलकुलेट नाउ इनटू दिस टॉपिक, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. सो दिस सिस्टम इज यूज सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, author association, but it cannot be used by registered company. जो नोंदणीकृत जो कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी cannot be used this single entity system. Registered company cannot be maintain their records into this single entity system. This company use double entry bookkeeping system records. So only registered company are not maintaining their records into this single entry system of bookkeeping. So because their transactions are large, number of transactions are large and number of set of books are maintained into this registered company to maintain their records. Subsidiary books maintain किया जाता है, journal maintain किया जाता है, ledger maintain किया जाता है, trial balance prepare किया जाता है. So this system of bookkeeping, single entry system is not suitable to रजिस्टर्ड कंपनी. इसलिए रजिस्टर्ड कंपनी को ये सिस्टम यहाँ पे सुटेबल नहीं, इसलिए रजिस्टर्ड कंपनी आर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू दिस सिस्टम. सो दिस सिस्टम ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट सिस्टम, अनरिलायबल सिस्टम ऑफ आवर अकाउंटेंसी. इसलिए इस सिस्टम को अनरिलायबल सिस्टम कहा जाता है, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटेंसी इसे कहा जाता है. इसलिए लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस मैन हैव नॉट मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू दिस single entity system. Only small businessmen, just like a sole trader, partnership firm, other association persons are maintaining their records into this single entity system. So this system is used by single entity system may be used by the sole trader, partnership firm, and other association of person are use this system. But registered companies is not maintaining their records into this single entity system. Only registered company जो है वो यहाँ पे excluded इसमें, but it cannot be used by registered company. So this system is treated as incomplete system, unscientific system, unreliable system of our accountancy. ये accountancy की unreliable system है, इसलिए we do not maintain our registered company जो होती है वो इस system से अपने record maintain करती है. Only sole trader, partnership firm and other association of persons are maintaining their records into this single entity systems. When you see the practical problem, जो आप practical problem देखते हैं तो उसमें नेटवर्क मेथड से आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. We use the network method. The following two accounts are open into this single entity system. Single entity system में दो अकाउंट्स ओपन किए थे, पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर किए थे. फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की तरह होता है. सेकेंड स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया था इनटू दिस सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ
statement of profit and loss. Profit and loss for the year ended on 31st March. For the year ended on 31st March. उस ईयर को आपको अभी क्लोज करना पड़ता है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पहला जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. जिस तरह बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, उसी तरह इसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, विच इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट्स हियर. एंड देन आफ्टर वी सी द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज एज ऑन, आपको जो डेट दी जाती है वो डेट आपको लिखना एज ऑन. यू हैव टू द स्पेसिम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्पेसिम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्पेसिमन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट की तरह होता है. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. इट जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की तरह इसका फॉर्मेट आपका होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में आप ऑन लायबिलिटीज राइट डाउन करते हैं, एसेट्स के एसेट्स राइट डाउन करते हैं. ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी आपकी होती है अमाउंट इन रुपीज, ये एसेट्स अमाउंट इन रुपीज. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते थे. एक राइट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम आप प्रिपेयर करते हैं. इनर कॉलम यहाँ पे नेसेसरी नहीं, और एड लेस के लिए एक छोटा सा कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में लिखने के लिए आप करते हैं छोटा सा. जैसे एलएफ और जनरल फोलियो का कॉलम होता है, उसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम आपको प्रिपेयर करना है वर्किंग नोट के लिए. ये पर्टिकुलर दो ही कॉलम आपके होते हैं. पर्टिकुलर्स राइट डाउन डिक्लेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड अमाउंट इन रुपीज. पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड. लायबिलिटी साइड शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं. तो इनटू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, आपको जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 358, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है आपका, राइट डाउन द पेज नंबर, सामने रखिए 358. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपका फर्स्ट है. इसी तरह प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर, दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना. पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड दूसरा स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो इनटू दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की तरह इसका फॉर्मेट आपका होता है. राइट डाउन एसेट्स इन एसेट साइड एंड लायबिलिटीज इन लायबिलिटी साइड, एंड वी कैलकुलेट द डिफरेंस. डिफरेंस जो कैलकुलेट किया जाता है वो रहता है एसेट और कैपिटल. आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. ये आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. वी सी द पेज नंबर 358 सामने देखिए आपके पेज नंबर 358. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ capital in these structures which the additional information is given there, and how to prepare the assets and liabilities. So into this amount of capital balancing figure, ये बैलेंसिंग फिगर आपका भी कैलकुलेट करना है. और इस कैपिटल से इट इज आवर क्लोजिंग कैपिटल. ये जो आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल से ही स्टेटमेंट की शुरुआत हुई. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की जो डेट होती है, ओपनिंग कैपिटल किसे कहा जाता है? जिसकी डेट 1 अप्रैल होती है. 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का कैपिटल बैलेंस आपका ओपनिंग होता है. और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कौन सा होता है आपका? 31 मार्च का. 31 मार्च बैलेंस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस. 31 का मार्च, 31 दिन का बैलेंस आपका रहता है क्लोजिंग. 31 मार्च का बैलेंस आपका होता है क्लोजिंग, एंड 1 अप्रैल का आपका बैलेंस होता है ओपनिंग. 4 मीन्स अप्रैल डेट आपकी, अप्रैल मंथ आपका होता है. 3 मीन्स
मार्च का मंथ आपका होता है, या 1 जनवरी, एक डेट आपको जनवरी की देता है, एक का आपका, यानी 1 जनवरी का आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, और 31 दिसंबर जो आपका होता है, 31/12 जो आपका होता है, इट इज 31 दिसंबर बैलेंस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपका 31 दिसंबर एंड 31 मार्च का आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस आपका रहता है 1 अप्रैल टू 1 जनवरी, ये आपका ओपनिंग बैलेंसेस होता है। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड कैपिटल। ये ओपनिंग बैलेंस की डेट कौन सी होती है? डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की डेट है, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की डेट आपकी रहती है 1 अप्रैल बोलते हैं आप उसे। एग्जाम में आपको दिया था 1 जनवरी की डेट आपकी रहती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग की डेट रहती है आपकी 31 मार्च, यानी ओपनिंग की 2 डेट रहती है अप्रैल टू जनवरी। जो स्टार्टिंग की डेट होती है उस ईयर की, उसे कहते हैं ओपनिंग डेट। क्लोजिंग डेट की डेट रहती है 31 मार्च या 31 जनवरी, दिसंबर, 31 दिसंबर या 31 मार्च, दैट इज आवर डेट ऑफ क्लोजिंग। तो इनटू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 वी सी Mr. Poonawalla keeps his records. A name of the person Poonawalla. Poonawalla keeps her records. We should prepare the statement of affairs for Poonawalla. Poonawalla का आपको prepare करना है मिस्टर Poonawalla. मिस्टर Poonawalla के स्टेट ये मिस्टर Poonawalla का ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। सिंगल इंजन सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। Poonawalla keeps his records to single entity system. Poonawalla keeps her records to single entity system. Single entity system से Poonawalla records मेंटेन करता है। We prepare 2 accounts, statement of affairs and statement of profit and loss. We see the transactions here. Read the problem. Capital of 31st March 2017. Capital as on 31st March 2017 rupees 60,000. 60,000 दिन 17 का आपका कैपिटल आपका है 16,000 एंड कैपिटल ऑन 2 कैपिटल आपको दे रहे। कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2018 रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख, 1 लाख का आपका कैपिटल है 31st मार्च 2018 का 1 लाख, और 31st मार्च 2017 का आपका कैपिटल है 60,000, 60,000 रुपए आपको दिया हुआ है। ड्रॉइंग आपको दी हुई, ड्रॉइंग्स रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 2000, ड्रॉइंग्स आपको 2000 दी हुई, 2000 एंड एडिशनल कैपिटल 12,000, एडिशनल कैपिटल रुपीज 12,000, 12,000। और कहा गया कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट करो। ये प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 358 प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हेन द अबव इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर। तो डेट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। 31 मार्च 2017 ये एक डेट आपको दी हुई, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। ये तो 2 डेट दी है, इसके पहले की डेट को कहा जाता है ओपनिंग डेट। ये आपकी ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ कैपिटल एंड 31 मार्च 2018 आल्सो इट इज कॉल्ड। इसके बाद में का साल है, इसलिए क्या होगा, क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग डेट, इसे क्लोजिंग डेट आपको कहना है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको दी हुई। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। इनटू दिस प्रॉब्लम एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट गिवन। यहाँ पर आपको एसेट्स भी, लायबिलिटीज आपको दी हुई नहीं है और एसेट्स भी आपको नहीं दी हुई। एसेट्स और लायबिलिटीज आर नॉट गिवन, सो वी प्रिपेयर सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की शुरुआत आपको क्लोजिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। वी सी द फॉर्मेट इन, इसके पहले के लेक्चर हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग कैपिटल आपका है 31 मार्च 2018 का कैपिटल आपका क्लोजिंग होता है। इस क्लोजिंग से आपको इस आंसर के स्टार्ट करना है। क्लोजिंग कैपिटल की डेट क्या होगी आपकी 31 मार्च 18 और ओपनिंग कैपिटल की डेट क्या होगी एज पर आवर प्रॉब्लम 31 मार्च 2017 का जो आपका कैपिटल है 60,000 इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इसमें माइनस होता है और क्लोजिंग कैपिटल आपका है, क्लोजिंग कैपिटल इज गोइंग टू 1 लाख। ये 1 लाख से आपको प्रॉब्लम का स्टार्ट करना है। 1 लाख आपका क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करो। क्लोजिंग कैपिटल इज गोइंग टू 1 लाख। 1 लाख आपका क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से
इसमें प्लस करना है, हमेशा आप कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं। इनटू दिस प्रॉब्लम आपको ऐड करना है, इसमें ऐड, इसलिए एक कॉलम मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ऐड करना है इसमें ड्राइंग, ऐड ड्राइंग्स। आपको मैंने फॉर्मेट लिख कर दिया है, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक तो कैश होती है या एनी काइंड, या एनी काइंड, दो टाइप की आपकी ड्राइंग, एनी काइंड, दो टाइप की आपकी ड्राइंग होती है। इनटू दिस सी द ड्राइंग इज गोइंग टू 2000, ड्राइंग आपको 2000 दिए, इसमें प्लस करना है ड्राइंग प्लस करो 2000, एंड टोटल कैपिटल कितना आएगा आपका 1,02,000, 1,02,000, ये आपका टोटल कैपिटल आपका है 1,02,000। इसमें से माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल दिया तो एडिशनल कैपिटल आल्सो डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट, एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस करो, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये उसका सीक्वेंस है, उसका फॉर्मेट मैंने आपको लिख के दिया है। लेस एडिशनल कैपिटल इज 12,000, लेस एडिशनल कैपिटल आपका कितना है 12,000 इसमें से माइनस करो, 1,02,000 में से 12,000 आपने माइनस की, 1,00,000 में से 12,000 माइनस करो, लेस एडिशनल कैपिटल 12,000 आपको माइनस करना है, 12,000 माइनस करो, 1,00,000 कितना रहता है 90,000 राउंड अप, इतना टोटल कितने रहते इसके माइनस करने के बाद ड्राइंग इसमें प्लस करना है, क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस होती है, एडिशनल कैपिटल आपका माइनस होता है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इसमें आपको प्लस करना है। इसके अंदर 2,000 बैलेंस कितना रहता है आपका 90,000, इसे बोलना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, आपने एडजस्ट करके कैपिटल अपने कैलकुलेट किया, उसको लिखा है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इसे बोलना है एडजस्टेड क्लोजिंग, ये जो आंसर आपका आ रहा है इसे बोलना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्ट किया आपने, ड्राइंग प्लस किया और एडिशनल कैपिटल उसमें माइनस किया, इसमें से लेस करना है, हमेशा इसमें ड्राइंग में से खाली ड्राइंग प्लस होती है, क्लोजिंग में बाकी अनदर आइटम्स उसमें लेस होते हैं, लेस ओपनिंग कैपिटल की डेट क्या आपकी 31 मार्च 2017, 60,000 जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, 60,000 की आपका ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, वो आपको पढ़ा करना है कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, उसमें से माइनस करना है हमेशा, उसकी डेट लिखो 31/3/2017, 31/3/2017 का आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आता है, लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस में से माइनस करो, कितना रहता है, इट इज आवर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका प्रॉफिट आया ड्यूरिंग द ईयर, 90,000 में से माइनस करो 60,000, कितना रहेगा डिफरेंस 30,000, 30,000 इज आवर नेट प्रॉफिट, इसे कहते हैं, ये आपका आंसर है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000, ये आपका प्रॉब्लम पे पूरा क्लोजर। इसकी नेसेसरी नहीं है क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आपसे गिवन है, आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट की शुरुआत, सेकंड स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसकी स्टार्टिंग आपको करना है क्लोजिंग कैपिटल से। इसकी डेट आपको दी है 31 मार्च 2018, क्लोजिंग डेट आपको लिखना है 31 मार्च 2018, ये भी आपको 31 मार्च 2018, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको प्रिपेयर नहीं करना है अभी, ओनली प्रिपेयर देन आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस उसमें स्टार्ट करना है, ओपनिंग उसमें से माइनस करना है आपको, और जो आंसर आएगा उसे बोलना है ओपनिंग में से, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है, उसमें ऐड करना है ड्राइंग आपकी कैश हो सकती है एनी काइंड, आपके पास कैश आपको ड्राइंग दी हुई 2,000, इसलिए 2,000 उसमें प्लस करना है, ड्राइंग प्लस होती है, एडिशनल कैपिटल आपका माइनस होता है, ओपनिंग कैपिटल उसमें माइनस होता है। उसके बाद में जो आपको कैलकुलेशन करना है ओपनिंग कैपिटल के बाद में, जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपका आता है बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया था एडजस्टमेंट, इसके बाद में कैलकुलेशन करना पड़ता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए सिंपल प्रॉब्लम आपका था हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम में हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल बैलेंस इज गिवन देयर इट इज फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, कैपिटल आपको दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके ओपनिंग कैपिटल की जगह आपको डेट दी हुई 31/3/2017 का ओपनिंग कैपिटल आपका हुआ, क्लोजिंग कैपिटल आपका 31/3/2018 का हुआ। इस क्लोजिंग से आपको आंसर के स्टार्ट करना है, ओपनिंग उसमें से माइनस करना है, ड्राइंग प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस होता है, विच इज द फॉर्मेट आपको मालूम है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, माइनस बाद में एडिशनल, इसके बाद में जो एडजस्टमेंट दिए थे, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन
इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करना है। इफ एडजस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ है। सो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इट इज द नेट प्रॉफिट इज देयर। सो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000, क्योंकि 90,000 में से 60,000 आपने माइनस किए, 30,000 इज द प्रॉफिट ऑफ और सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड से आपको प्रॉफिट आपके हुआ। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 30,000 इज आवर प्रॉफिट। दिस इज आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, उसका आंसर है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000। ठीक है स्टूडेंट, रुकते हैं यहाँ पर। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 358, 358 सामने रखिए टेक्स्ट बुक, और नोटबुक सेपरेट मेंटेन कीजिए। उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है लायबिलिटी और एसेट्स, वही आपको प्रिपेयर करना है। खाली वहां पर आपको कैपिटल बैलेंस आपको नहीं दिया जाता, तो कैपिटल बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल की आपको कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो फर्स्ट वी प्रिपेयर ओनली 2 अकाउंट्स इनटू दिस सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में 2 ही स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उस साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट मोटिवेटेड कंसर्न जो आपके होते हैं, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप फर्म है, या अदर एसोसिएशन जो आपके हैं, दे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू दिस सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉफिट मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। दे नो द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सो ही adopt this method single entry system. They maintain their records into this single entry system, and the method of network method से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। नेटवर्क मेथड में आपको 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 358। ओके, थैंक यू।